గన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం రథగజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా రథగజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकी श्रीमति पद्मावती जय भवा क्षीराम्भोरासिसारैः प्रभवति रुचिरै यत्स्वरूपे प्रदीप्ते शेषान्येषां मृजेशान्यजनिषितसुधा कल्पदेवाङ्गनाद्याः यस्याः सिंहासनस्य प्रविलसति सदा तोरणं वैजयति सेयं श्रीवेङ्कटाद्रिप्रभुवरमहिषी भातु पद्मावती श्रीः भगवती जय जय पद्मावती। ఈనాడు తిరుచానూర్, తిరుసుకనూర్, అలర్మేల్ మంగాపురం మొదలైనటువంటి నామములతో ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఈ తిరుచానూర్ దివ్యక్షేత్రంలో అద్భుతమైనటువంటి నవ దినములలో 9 రోజుల పాటు కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు పద్మావతి అమ్మవారికి చక్కగా ప్రారంభింపబడుతున్నాయి. పాంచరాత్రాగమ శాస్త్రం ప్రకారంగా నిత్య అర్చనలు, మాసోత్సవములు, పక్షోత్సవములు, సంవత్సరోత్సవములు కూడా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి. అందులో కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి శుద్ధ పంచమి ఆ దినాన్ని పురస్కరించుకుని
ఆనాడు అమ్మవారు పద్మసరోవరంలో పద్మములలో పద్మావతిగా అవతరించినటువంటి ఆ విశేషమైనటువంటి పర్వదినాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని అంతకుముందు 9 రోజుల నుంచి నిర్వహింపబడేటటువంటి విలక్షణ బ్రహ్మోత్సవాలకు ఈనాడు అంకురార్పణ అనేటటువంటి విలక్షణమైనటువంటి కార్యక్రమంతో ప్రారంభం జరుగుతోంది. ఏదైనా ఒక విశిష్టమైనటువంటి కార్యక్రమం ఆలయాదులలో జరగాలి అంటే ముందుగా ఆ కార్యక్రమం యొక్క సాఫల్యత కోసం తత్సంబంధమైనటువంటి విశేషమైన ఫలితాల కోసం నిర్వహింపబడేటటువంటిదే ఈ అంకురార్పణ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విద్యుత్ శాఖ వారి దేదీప్యమానంగా ఆ ఆకాశమంతా కూడా దగద్దగాయమానంగా ప్రకాశించేటట్లుగా విశేష విద్యుత్ దీప కాంతులతో భూతల వైకుంఠంగా ప్రకాశించేటట్లుగా ఈ తిరుచానూరు క్షేత్రాన్ని ఈ పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అత్యద్భుతంగా అలంకారం చేశారు. వారి యొక్క ఆ కృషి విశేషమైనటువంటిది. అంతేకాక ఇంతటి విలక్షణమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మోత్సవముల యొక్క కార్యక్రమాలను మనందరికీ కూడా ప్రత్యక్ష వీక్షణం చేసినటువంటి ఎస్వీబీసీ ఛానల్ ద్వారా మనందరికీ కూడా ఆ భాగ్యాన్ని కలిగింపచేస్తున్నారు దేవస్థానం వారు. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహాలక్ష్మియే అనటంలో ఏమాత్రం సంశయం లేదు. ఆనాడు శ్రీవైకుంఠాన్ని వీడినటువంటి మహాలక్ష్మి ముందుగా పాతాళ లోకంలో ఉన్నటువంటి కపిల మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో కొంతకాలం తపస్సు చేసినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. అటుపైన ఆ మహర్షి కోరిక మీద కొలహాసురుడు అనేటటువంటి ఆ రాక్షసుడిని సంహరించుకోవటం ప్రార్థించగా ఆమె ఆ రాక్షసుని సంహరించి ఆ కొల్హాపురంలోనే ఆమె నిత్య నివాసం చేసినట్లుగా మనకి చరిత్ర తెలుస్తోంది. కనుకనే అమ్మవారికి కోలాసుర భయంకరి అనేటటువంటి విశేషమైనటువంటి నామం కూడా ఉన్నది. అదేవిధంగా అక్కడ వైకుంఠం నుంచి వేంచేసినటువంటి అమ్మవారి కోసం ఆ బయలుదేరినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ముందుగా తాను ఈ కోల్హాపుర క్షేత్రంలో వచ్చి 10 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడట. అయినప్పటికీ కూడా ఆ స్వామికి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలగలేదు అంటారు. ఆ తర్వాత అశరీరవాణి ద్వారా వరాహ క్షేత్రానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సుందరమైనటువంటి ఆ సువర్ణముఖి నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో నీవు వెళ్ళి ఒక విలక్షణమైనటువంటి ఒక సరస్సుని ఏర్పాటు చేసి ఆ సరస్సులో స్వర్గం నుంచి తేబడినటువంటి బంగారు కమలముల చేత అమ్మవారిని మహాలక్ష్మిని మూలమంత్రం చేత नमामि कमले ताक्षी विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वा त्रैलोक्यपूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वच्च मला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। श्री मात्रे नमः। शुक महर्षि का भूमि यह तिरुचानूर जो माना जाता है, आज कार्तिक ब्रह्मोत्सव पद्मावती मैया का मनाया जाता है। अभी आप अंकुरार्पण की विधि देख रहे हैं। अभी विश्वक्सेन जो सेनाधिपति हैं उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। चतुर्भुजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ही प्रतिरूप हम विश्वक्सेन की देख सकते हैं। उस
सेनाधिपति उत्सव इसे कहा जाता है। उससे आगे आगे आपने एक पालकी में सुदर्शन चक्र को भी शोभा यात्रा में निकलते हुए देखा है। देखिए यहाँ जो पुष्करिणी हम देख रहे हैं, यह ऐसी पुष्करिणी है जो श्रीनिवास भगवान ने स्वयं इस पुष्करिणी के कूल पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी मैया को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसी पुष्करिणी में सहस्रदल पद्म में मैया पद्मावती का आविर्भाव हुआ है। कितना निर्मल स्वच्छ जल आप देख सकते हैं। विद्युत दीपालंकरण में यह शहर ऐसा दिखाई दे रहा है मानो वैकुंठ स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हो गया हो। पद्मावती मैया का कार्तिक वार्षिक ब्रह्मोत्सव आज सुबह लक्ष्य कुंकुमार्चना के साथ शुभारंभ हुआ है। वह एक शगुन माना जाता है, शुभ शगुन है। और अब विश्वक्सेन जो सेनाधिपति है उनका उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव को अंकुरार्पण कहा जाता है। अंकुर नवधान्य को मिट्टी के बर्तनों में 5 बर्तनों में नवधान्य को डालकर उसमें पानी और दूध लगाकर उसमें से अंकुर जब निकलते हैं, उसे ध्वजावरोहण के समय उन अंकुरों को, उनमें से जो छोटे छोटे पौधे उग आते हैं, उनको मैया के चरणों में समर्पित किया जाता है। देखिए अभी विश्वक्सेन जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेनापति हैं, वो शोभा यात्रा में निकले हैं। छत्र चामर आदि आलय मर्यादा के साथ निकले हैं शोभा यात्रा में। आगे आगे पालकी में आप चक्र तालवार को भी देख सकते हैं। ये दोनों सेनापति मतलब तैयारी से पहले यानी ब्रह्मोत्सव से पहले पूर्वेथियों में शोभा यात्रा के लिए निकले हैं। और सेनापति हैं, उनके हाथों में गदा तथा ढाल देख सकते हैं। चतुर्भुजी ये विश्वक्सेन शोभा यात्रा निकले हैं और ऐसा दिखाई दे रहे हैं मानो सभी असुरों को सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मैया का ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हो रहे हैं और आप लोग यहाँ से निकल जाओ। वास्तव में जैसे ही पूजा आदि नित्य प्रतिबी जो मतलब हम मनाते हैं, उस पूजा से पहले घंटा नाद करते हैं और ये कहकर कि अभी धर्म पूर्वक हम शास्त्र पूर्वक पूजा पाठ करेंगे और आप असुर यहाँ से निकल जाओ कहकर उनको चेतावनी देते रहते हैं। उसी भांति अब विश्वक्सेन यानी मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और अब अंकुरार्पण जो है किया जाता है। अंकुरार्पण सेवा में इस उत्सव में सबसे पहले उद्यान वन से, मैया के उद्यान वन से मिट्टी का संग्रहण किया जाता है। बड़े पवित्रता के साथ सब्बल आदि की पूजा करके भूमि यानी भू सूक्तम पढ़ते पढ़ते यानी उनका पठन पाठन करते हुए मिट्टी का संग्रहण किया जाता है। उसके उपरांत उस मिट्टी को 5 मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया जाता है और उनमें नवधान्य भी डाले जाते हैं। नवधान्य यानी सूर्यमंडल के 9 ग्रहों का वो संकेत करते हैं और एक एक ग्रह के लिए एक एक धान मतलब निर्धारित किया जाता है और धान को मतलब मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया जाता है। ये अंकुर का निकलना विकास का संकेत होता है और विकास की दिशा दिखाई देती है। ऐसे अंकुर जो निकलते हैं वो बड़े पवित्र मान लिए जाते हैं और वही विकास का संकेत माना जाता है। यहाँ विश्वक्सेन रिपुओं का संहार करने के लिए, उनको भगाने के लिए आज शोभा यात्रा में निकले हैं। उनके साथ साथ
चक्र तालवार भी यानी सुदर्शन चक्र भी आगे आगे निकली है। ये दोनों यानी निर्विघ्न रूप से कार्तिक ब्रह्मोत्सव आगे संपन्न हो, इसके लिए अरि यानी रिपुओं को मतलब दूर भगाने के लिए उनसे ये कहा जा रहा है कि आप पाताल लोक में जाकर छिप जाओ, अन्यथा हम आप लोगों को मार देंगे। वास्तव में सुर असुर का संग्राम हर वक्त चलता ही रहता है, लेकिन असुरों का हर वक्त किसी न किसी रूप से लीला विभूति धारण करके भगवान श्री महाविष्णु इस पृथ्वी पर उतर कर आते हैं और उन असुरों का संहार करके ही रहते हैं। देखिए विश्वक्सेन सेनापति आगे निकलते हैं और इस शोभा यात्रा से ये बहुत वैभव पूर्वक हमें दिखाई दे रहा है। और कल से वाहन सेवाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। कल सुबह ध्वजारोहण होगा और उसमें यहाँ इस शोभा यात्रा में वहाँ अंकुरार्पण जो उद्यानवन में किया जाता है, वहाँ पर गज ध्वज का भी मतलब उसकी भी प्रार्थना की जाती है, उसका भी विधिवत पूजा करके उसको भी शोभा यात्रा में ले आया जाता है और उस गजपट को कल ध्वजारोहण के समय फहराया जाता है। जिस भांति श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वाहन और ध्वजारोहण में गरुड़ का ध्वज फहराया जाता है, उस भांति यहाँ मैया के ब्रह्मोत्सव में गजपट को फहराया जाता है ध्वजारोहण के समय। दयानि
महादेवै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब हम कार्तिक ब्रह्मोत्सव के आरंभ के पहले जो अंकुरार्पण अनुष्ठान है उस कार्यक्रम को देखने वाले हैं। अभी विश्वक्सेन जी मंदिर से बाहर निकले हैं और यह माना जाता है कि जिस प्रकार से कल कार्तिक ब्रह्मोत्सव ध्वजारोहण के साथ आरंभ होने वाला है, तो एक बार उन तिरुमाड़ा वीधियों में माता शोभा यात्रा के लिए निकलती है। तो यह माना जाता है कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और वहाँ सुव्यवस्थित रूप को एक बार देखने के लिए भी विश्वक्सेन जी उन तिरुमाड़ा वीधियों में वे एक बार शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं, ऐसा भी माना जाता है। और उसी प्रकार से किसी प्रकार के विघ्न न हो, इस अभिलाषा के साथ, इस इष्टा के साथ, इस इच्छा के साथ यह अंकुरार्पण विधि को किए जाते हैं। जैसे ये जो अंकुरार्पण जो है इसको बीज वपन भी कहते हैं और जैसे इसका अर्थ बीज बोना। आगम शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है यह अंकुरार्पण विधि, जिसके अंतर्गत भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेनापति श्री विश्वक्सेन की पूजा और पुण्याहवाचन होती है। हम देख सकते हैं विश्वक्सेन महाराज जी यहाँ पर इस पद्मावती माता के वाटिक यानी उद्यानवन में वे आए हैं और यहाँ पर इसी अंकुरार्पण विधि का निर्वहन अर्चक गण कर रहे हैं। यह पवित्र मिट्टी पूजा उन पात्रों को पालिका कहते हैं और उनकी पूजा की जाती है और सभी विभिन्न देवताओं का आवाहन भी किया जाता है और इसी को मृत संग्रहण भी कहा जाता है। तो यह बहुत ही पवित्र अनुष्ठान के रूप में कहते हैं। मंदिरों में हमेशा अंकुरार्पण विधि को रात के समय में ही करते हैं, क्योंकि चंद्र पौधों का नियंत्रक सस्यकारक है। इस अंकुरार्पण विधि को अधिकांशतः रात में ही किया जाता है। यह ज्योतिषीय सिद्धांत है। आगमों में यह भी उल्लेख किया गया कि बीजों से निकलने वाले अंकुर कार्यक्रम की सफलता का प्रतीकात्मक तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। बीज बोने के लिए जो पालिका नामक बर्तन का उपयोग किया जाता है और ब्रह्मपीठ को सजाकर इंद्र गरुड़ शेष विभिन्न देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और बीज बोने के लिए सोमराज मंत्र को पाठ किया जाता है। हम देख रहे हैं इन सभी जो विधिवत प्रक्रिया के अनुसार इस पूजा विधि का निर्वहन अर्चक गण कर रहे हैं। यह सारी विधिवत प्रक्रिया को चंद्र सहोदरी कहलाने वाली माता पद्मावती के ब्रह्मोत्सव के अंकुरार्पण में जो किया जा रहा है। आदि अनादि काल से धर्म सम्मत रहे भारतवर्ष में सनातन देवी देवताओं के पूजन क्रम में धन की अधिष्ठात्री देवी विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी की आराधना विभिन्न अभीष्टों के लिए की गई है। से माता विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों पर अनुकंपा बरसाती है। तो क्योंकि उन सारे कार्यक्रम के पहले इस अंकुरार्पण की विधि को
बहुत ही विधिवत रूप में जो किया जा रहा है। हमारे धर्म में महादेवी या महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में से एक महालक्ष्मी को ही धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव और सुख संपदा का आधार के रूप में हम मानते हैं। संपूर्ण देश में माता लक्ष्मी के कितने ही देवालय विराजमान हैं और यहाँ इस पद्मावती आलय मंदिर का विशेष स्थान है। बहुत ही महिमाकारी इतिहास के इस तिरुचानूर का है और यह तिरुपति के निकट ही जो तिरुचानूर स्थित है और यहाँ पर उसी तिरुचानूर के मंदिर में माता पद्मावती देवी है। भूमिर्भूम्नाद्यो वरिणान्तरिक्षं महित्वा गदधेर्तिमन्नाथमन्नाध्यायादधे आयङ्गो पुष्टिरक्रमेद सदन्मातरं पुनः पितरं च प्रयंस्वः त्रिगुं सद्धाम विराजदिवात्मलिङ्गाय श्रिये प्रत्यस्य महत्युभिः अस्य प्राणागपानत्यन्तश्चरदिरोचना विक्ष्यन्महेशस्वः यद्वा कृत्वा परोपमन्यायदोद्या स्वल्पमग्ने तत्प्रवोद्विमसि यत्ते मन्यवरोत्तस्य पृथिवीमनुदद्वसे आदित्या विश्वे तद्देवमसमस्य समापरन् मेदिने देवे वसुन्धरा स्यात् देवे ब्रह्मवर्चसव्यगृणां गोत्रं च कर्मणः देवे हिरण्यगर्भिणे देवे प्रसोदरे सदने सत्यायने सेदा जगते हनो देवे मह्यगे महाधरणे महाव्यधिष्ठा सुञ्जय यज्ञ विभेषणे इंद्रवग्ने
वायुमदे जलशयने श्रियं धाराय सत्यं परिवेदिने सोमरिसद्गङ्गाय देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्।
श्रीमात्रे नमः। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुंधरा। अभी तक आपने मैया के उद्यान से मिट्टी का संग्रहण का कार्यक्रम देखा है। वहाँ पर दीक्षाधारी अर्चक स्वामी ने बड़े वैभव के, बड़ी भक्ति और प्रपत्ति के साथ भू सूक्तम तथा वराह स्वामी की स्तुति की है। भू सूक्तम और भू गायत्री का भी उन्होंने पठन किया है। अभी इस मृत्यु का शोभा यात्रा में पूर्व वीथियों में ले जाया जाएगा और फिर मंदिर के अंदर जाकर याग मंडप में इन यानी उस मिट्टी में नवधान्यों का अंकुरारोपण होगा। मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को साक्षी बनाकर अंकुरारोपण का कार्यक्रम चलेगा। 4 द्वार बनाए जाते हैं उस मिट्टी से और बीच में अग्नि देवता का आवाहन करके अंकुरारोपण किया जाएगा। अभी ध्वज पट की भी पूजा यहाँ पर की गई है। बड़े वैभव के साथ अंकुरारोपण कार्य चल रहा है। जिस कल्प में हम रहते हैं उसे श्वेत वराह कल्प कहा जाता है। इसीलिए यहाँ मिट्टी संग्रहण के समय भूख सूक्तम के साथ साथ वराह स्वामी की स्तुति पूजा भी की गई है। यानी जब जय विजय को शाप प्राप्त हुआ और उनको 3 योनियों में राक्षस यानी असुर बनकर वैर भक्ति के द्वारा पुनः विष्णुलोक पहुँचने का जो शाप मिला था, उसके कारण वो इस पृथ्वी पर आ गए थे। एकदा समय श्री महाविष्णु ने भू महालक्ष्मी से कहा कि अब मुझे अवतार धारण करने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी शोभा के साथ, अपने विस्तार के साथ भूमंडल का विकास करना होता है। सच श्यामला जगानी होती है और इसीलिए तुम वहाँ जाकर उस पृथ्वी की शोभा बढ़ाओ और मैं अवतार ग्रहण करके जब आवश्यकता होती है तब जाकर मैं एक विशेष कार्य के लिए उतर कर आऊँगा, अपनी लीला विभूति दिखाऊंगा। ऐसा कहने पर भू महालक्ष्मी यहाँ उतर आई जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और अपना विकास करती गई। लेकिन जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में बड़ी पीड़ा देने लग गए थे। तब जाकर वराह रूप में स्वामी यहाँ उतर कर आए और जिस पाताल में भूमाता को फेंका गया था उसका उद्धार वराह के रूप में अपने सींग पर उठाकर भू महालक्ष्मी का उद्धार किया था। इसीलिए संग्रहण के समय भू सूक्तम के साथ साथ वराह कल्प के कारण वराह स्वामी की स्तुति भी की गई है। अभी आप देख सकते हो पूरे वैभव के साथ आलम मर्यादा छत्र चामर आदि के साथ साथ शोभा यात्रा में निकले हैं। मिट्टी संग्रहण के उपरांत विश्वक्सेन और चक्र तालवार दोनों निकले हैं शोभा यात्रा में। आज चारों पूर्व वीथियों में यह शोभा यात्रा चलेगी और उसके उपरांत अंदर जाकर याग मंडप में अंकुरारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। अभी आप इस पुष्करणी के चारों ओर शोभा यात्रा को देख सकते हो। नवग्रहों के लिए नवधान्य समर्पित किए जाते हैं और उनकी भी एक विशेषता है। सूर्य मंडल में जितने ग्रह होते हैं उन सभी का संकेत ये नवधान्य करते हैं। सूर्य के लिए गोधूमः, चंद्र के लिए व्रीहि, कुज ग्रह के लिए आढ़कः, बुध ग्रह के लिए मुद्गः, गुरु ग्रह के लिए क्षणकः, शुक्र ग्रह के लिए राजमाशः, शनि के लिए तिलम, राहु के लिए माशः और केतु के लिए कुलत्थः। इस प्रकार ये सभी धान्य नव ग्रहों के लिए समर्पित किए जाते हैं। अंकुरार्पण के समय अष्टदिक्पालक का भी स्वागत हुआ है। पूरब से इंद्र को, आग्नेय से अग्नि को, दक्षिण से यमराज को, नैऋति से निरुति,
पश्चिम से वरुण, वायव्य से वायुदेव, उत्तर से कुबेर और ईशान्य से ईश्वर। देखिए यहाँ भद्र गजराज देखने को मिल रहे हैं। ये भी आलय मर्यादा के तौर पर वाहन सेवा के आगे आगे दो भद्र गज चलते रहते हैं। वास्तव में ये मैया का वाहन है। करी इसको कहा जाता है। इनके वर्ण के कारण इनको करी कहा जाता है। ये तामसी गुण का संकेत है, लेकिन ऐसे तामसी गुण वाले इस भद्रगज पर मैया आरूढ़ होकर अपना वाहन बनाती है हाथी को। तो आज ये दोनों गज आगे आगे निकल रही हैं शोभा यात्रा में। छत्र चामर आदि के साथ शोभा यात्रा में विश्वक्सेन निकले हैं। चतुर्भुजी, गदा, ढाल, पद्म आदि को धारण करके वो निकले हैं। पुष्करणी के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए, पुष्करणी की प्रदक्षिणा करते हुए मंदिर के अंदर वो जाएंगे। फिर वहाँ पर याग मंडप में अंकुरारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। फिलहाल पुष्करणी की प्रदक्षिणा में तिरुचानूर की चारों पूर्ववेथियों में शोभा यात्रा के लिए निकले हैं विश्वक्सेन और सुदर्शन चक्र। भूते नमः कमलायिनी नमः कमलवासिन्यै गोविंद गृह मेधिनी। हम देख रहे हैं जैसे पद्मावती माता के वाटिका से मिट्टी, पवित्र मिट्टी को लेकर दीक्षाधारी पुजारी यहाँ आगे आगे जा रहे हैं और उनके पीछे विश्वक्सेन महाराज पूरे तिरुवीथियों का निरीक्षण करते हुए, क्योंकि कल से माता विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देने वाली है, तो इसीलिए पूरे तिरुवीथियों का वहाँ पर वे निरीक्षण करते हुए वे जा रहे हैं। और यहाँ और एक यहाँ जैसे सुरक्षा अधिकारीगण, बाकी के समय में तो सुरक्षा अधिकारीगण नहीं रहते हैं, एक प्रकार से हम उन सारे सुरक्षा अधिकारियों को भी, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पर सेनाधिपति कहते हैं ना हम भगवान विश्वक्सेन को, तो उस सेनाधिपति के ही सेना के रूप में भी यहाँ सारे सुरक्षा अधिकारीगण भी उन तिरुवीथियों में भगवान के साथ जा रहे हैं। ये सारी जो विधिवत प्रक्रिया को हम देख रहे हैं इस श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से। जो लोग यहाँ इस दूर दूर प्रांत तक जो नहीं आ सकते हैं, वे लोग भी घर बैठे देखने का सौलभ्य हमें प्राप्त हो रहा है। वैकुंठ वासिनी श्री महालक्ष्मी हमेशा अपने प्रियतम श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल पर सुशोभित होकर व्यूह लक्ष्मी के रूप में और तिरुचानूर में पद्मावती या अलमेलुमंगा के नामों से अर्चा मूर्ति के रूप में भक्तजनों को दर्शन प्रदान करती रहती हैं। यहाँ उसी संदर्भ में जिस प्रकार से श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों को मनाए जाते हैं, उसी प्रकार के वैभवपूर्ण और भव्य तरीके से श्री माता पद्मावती के भी कार्तिक ब्रह्मोत्सवों का आयोजन किया जाता है। जिन जिन प्रकारों से वहाँ पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमलाई क्षेत्र में होते हैं, उसी प्रकार की विधियों को भी हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक अंतर ये है कि वहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वैखानस पद्धति है, तो यहाँ 5 रात्र आगमों के अनुसार यहाँ पूजा होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि माता पद्मावती जो दयाद्र हृदय वाली और हाँ
इस तरह की दयाद्र हृदय वाली की जो ब्रह्मोत्सवों को भी बहुत ही सुंदर तरीके से मनाने की कोशिश ही कर रहे हैं हमारे अधिकारगण भी। माता पद्मावती दयाद्र हृदय वाली एवं प्रेम स्वरूपिणी है। वह सभी जीवों पर हमेशा करुणा बरसाती हैं। इसीलिए उन्हें हृदय सरसिजे भूत कारुण्य लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की जो वाहन है वह धीरे धीरे सूर्य मंदिर के पास आ रहा है। यहाँ इस तिरुचानूर मंदिर में, तिरुचानूर शहर में ये जो सूर्य मंदिर है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पुष्करणी के बगल में ही यह तिरुचानूर में इस सूर्य मंदिर स्थित है। और यहाँ पर भी आलय परंपरा के अनुसार विश्वक्सेन की आरती देकर यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। श्री महाविष्णु की हृदयवासिनी महाता के बारे में एक कथा जो प्रचलित है, जो भृगु महर्षि की शिक्षा के श्री महाविष्णु से रूठकर जब श्री महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर भूलोक के कोल्हापुर क्षेत्र में कोल्हासुर करवीर नामक राक्षसों का संहार करके कोल्हापुर निवासिनी एवं करवीर निवासिनी के नामों से लोकप्रिय हो गई। तदुपरांत श्री महाविष्णु महालक्ष्मी को ढूंढते हुए भूलोक में आए और श्री वेंकटेश्वर के रूप में श्री वेंकटाचल क्षेत्र में बस गए। श्री वेंकटेश्वर ने श्री महालक्ष्मी के अनुग्रह के लिए 10 वर्षों तक कठोर तपस्या उन्होंने किया था। तब देववाणी के कहने पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी इस स्वर्णमुखी नदी के तट पर पद्म सरोवर के पास 12 वर्ष तप करने पर श्री महालक्ष्मी पद्म सरोवर से सहस्रदल सुवर्ण पद्म से अलमेलु मंगा एवं पद्मावती नामों से अवतरित हुई। यही है इस पुष्करिणी की जो महिमा। उन्होंने बाद में श्री वेंकटेश्वर को प्राप्त करके श्री स्वामी को भी उन्होंने सुसंपन्न किया था। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी अनेक बार विभिन्न संदर्भों में अनेक अन्य अवतार लेने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जब जब भगवान श्री महाविष्णु ने अवतार लिया था उन सभी समयों में भी भगवान महाविष्णु के साथ माता भी थी। त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ। 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 त्वमेव शरणं वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र। वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज
भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा जगन्नाथ त्वमेव शरणं वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु घटकर करुणा शृङ्गाराधिप वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु घटकर करुणा शृङ्गाराधिप पटुतर नित्य वैभवरायतिरु वेङ्कटगिरि निलया जगन्नाथ पटुतर नित्य वैभवरायतिरु वेङ्कटगिरि निलया जगन्नाथ पटुतर नित्य वैभवरायतिरु वेङ्कटगिरि निलया जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा जगन्नाथ त्वमेव शरणं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। धूप दीप नैवेद्य के उपरांत विश्वक्सेन जी मृत्यु संग्रहण के उपरांत शोभा यात्रा में निकले हैं। तकरीबन बहुत निकट आ गए हैं, मंदिर के महाद्वार तक आ गए हैं। भूमंडल में, खेतों खलिहानों में, पशु पक्षियों, अन्यान्य जीव राशियों, अमूल्य रत्नों के खानों को स्थिर रूप में धारण करने वाली जगत जननी कल से अन्यान्य वाहनों पर आरूढ़ा होकर भक्तों को दर्शन प्रदान करती हैं। मैया की सेवा में प्रधान रूप से भक्ति ही होना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदना दास्य सख्य और आत्मनिवेदन जैसी नवधा भक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए अभी विश्वक्सेन जी शोभा यात्रा में पधार रहे हैं। लोक माता का मंगलाशासन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जिस मैया इस पृथ्वी पर सभी प्रदान करती है उनको पुनः समर्पित करना यही मंगलाशासन होता है। चतुर्भुजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ही रूप की आज विश्वक्सेन हमें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। एकदा समय भृगु ने पराशक्ति की तपस्या की थी और उन्होंने पराशक्ति की प्रसन्नता में उनको एक वर मिला और भृगु ने ये पूछा कि शक्ति, युक्ति और भुक्ति ये तीनों से ही यहाँ पृथ्वी पर जीवन चलती है। वैसे पार्वती मैया तो शंकर के साथ सौभाग्यदायिनी बनकर वह अपनी कला दिखा रही है और ब्रह्म के साथ सरस्वती मैया अपनी कला दिखा रही है। बस हे महालक्ष्मी, तुम मेरे लिए एक वर दो, मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरा उद्धार करो। यही भृगु महर्षि ने एक वर मांगा था, लेकिन बहुत प्रसन्न होकर पराशक्ति ने भृगु महर्षि के यहाँ पुत्री के रूप में अनपायनी बनकर जन्म लिया। दूर्वास के शाप के कारण लक्ष्मी को
होना पड़ा, इसलिए कि वह जब भृगु की पुत्री बनी तो स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में अपना पूरा विकास दिखाकर स्वर्ग और इंद्र को बहुत संपन्न बना दिया था। लेकिन इंद्र ने एक शाप जो है दूर्वास से प्राप्त किया था, एक अनर्थ हुआ था और दूर्वास महामुनि ने इंद्र को शाप दे दिया था और ऐसे में पूरी संपदा मतलब सागरगत हो गई थी। यानी महालक्ष्मी इंद्र को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर अपनी मतलब अपनी मायके में चली आ गई और वह सागरगत हो गई थी। लेकिन जब इंद्र निसंपन्न हो गए थे तो वो विष्णु के यहाँ गए और प्रार्थना की कि मेरा पूरा संपदा स्वर्ग मतलब सागरगत हो गई है और आप ही मेरी रक्षा करो। तब श्री महाविष्णु यानी महालक्ष्मी श्री महाविष्णु को छोड़कर पृथ्वी पर आ गई थी और इसीलिए वो भी बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ मतलब इंद्र से कहा कि चलो हम चलते हैं और मैया को ले आते हैं। तब जाकर सुर और असुर दोनों ने क्षीर सागर का मंथन तो मंदरगिरी पर्वत को मथनी बनाकर वायु को रस कर सुर असुर ने उसका मंथन किया तो वहां से चंद्रमा उद्भूत हुई, महालक्ष्मी उद्भूत हुई, अमृत उद्भूत हुई, सारा कुछ वैभव कल्पवृक्ष पैदा हुआ, उससे आविर्भूत हुआ था। तब जाकर महालक्ष्मी ने 8 रूपों में अपनी विकास दिखाई थी। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी के रूप में अपना विकास दिखाया और पृथ्वी को भी बहुत संपन्न कर दिया था। ये चंद्र सहोदरी मानी जाती है, यानी क्षीर सागर के मंथन के समय इनके साथ साथ चंद्र भी उद्भूत हुआ था, आविर्भूत हुआ था। इसीलिए आज भी कार्तिक महीने के इस स्वच्छ आसमान में शीतलता जब फैली हुई रहती है, ऐसे समय में मैया का अंकुरारोपण कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। देखिए अभी कर्पूर आरती दी गई है विश्वक्सेन महाराज को और वो बड़े गंभीर रूप धारण करके शोभा यात्रा में निकले हैं और मंदिर के अंदर जाकर अंकुरारोपण का जो कार्यक्रम है वह संपन्न होगा, यानी बीजों का वपन होगा और उनसे जो अंकुर पैदा होते हैं उनका समर्पण ध्वजावरोहण के समय मैया के चरण कमलों में समर्पित किया जाता है। आज अंकुरार्पण है, कल सुबह यानी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। देखिए ये तामस के प्रतिरूप निश्चित रूप से होंगे ही भद्रगज, लेकिन उनका जो मस्तिष्क है वह अमूल्य रत्नों से भरा रहता है। मुक्ताएं मोतियां उनके मस्तिष्क में मतलब देखने को मिलते हैं और मुक्ता या मोती जो है सत्वगुण संपन्न होता है। इसीलिए ऐसे भद्रगज को मतलब अपना वाहन बनाकर मैया विशेष रूप से गज वाहन पर विशेष रूप से सुसज्जित होकर शोभा यात्रा में निकलती है। जिस प्रकार गरुड़ वाहन श्रीनिवास भगवान के लिए विशेष वाहन कहा जाता है, उसी प्रकार गज वाहन माता महालक्ष्मी का विशेष वाहन माना जाता है। कल सायं संध्या से ही वाहन सेवाएं प्रारंभ हो जाती है। कल सुबह ध्वजारोहण होता है, यानी मैया के कार्तिक ब्रह्मोत्सव में सभी चराचर स्थाणु जंगम सभी का आह्वान किया जाता है और रत्न गर्भस्थिते लक्ष्मी परिपूर्ण हिरणमयी समागच्छ समागच्छ स्थित्वाशु पुरतो मम
कहकर यहाँ पर यानी यह शुक भूमि कहा जाता है। यानी शुक महामुनि ने यहाँ पर बहुत गंभीर तपस्या की थी और उसी तपस्या के कारण यहाँ महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है। पुष्करिणी, पुण्य पुष्करिणी के चारों ओर जो पूर्ववेतियाँ हैं उनमें शोभा यात्रा के लिए निकले हैं। देखिए, छत्र और चामर समर्पित किए गए हैं आलय मर्यादा के तौर पर। विश्वक्सेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अंकुरारोपण कार्यक्रम के लिए सन्नद्ध हो रहे हैं। मिट्टी का संग्रहण तो हो चुका है, अब मंदिर के अंदर याग मंडप में अंकुरारोपण बड़े वैभवपूर्ण ढंग से मंत्रोच्चारण के बीच, वाद्यों के बीच अंकुरार्पण का कार्यक्रम मतलब मैया को समर्पित किया जाता है। आदि लक्ष्मी यानी उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है, आविर्भाव हुआ है, वहाँ से ही लक्ष्मी का विकास देखने को मिलता है। हर प्राणी के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे में धान्य लक्ष्मी का रूप धारण करके पूरी पृथ्वी पर हरियाली, हरितिमा विकसित कर देती है मैया। और उसके साथ धैर्य लक्ष्मी यानी जो रिपु, हमारे जो शत्रु होते हैं, उनका मतलब सामना करने के लिए हर जीव के लिए यानी हर जीव मृत्यु से डरता है, अपने शत्रु से डरता है। तो ऐसे में एक बार मैया का ध्यान किया, एक बार मैया की स्तुति की, तो धैर्य लक्ष्मी का रूप धारण करके हर जीव में, हर प्राणी में, अपने भक्तों में वह धैर्य और साहस जो है भर देती है। और गज लक्ष्मी में मालूम ही मैया का धन है, और गज जो है वह सत्वगुण संपन्न अपना मस्तिष्क रखता है मुक्ताओं के कारण, और वह भले ही तामस गुण का प्रतीक हो, लेकिन ऐसे तामस गुण को दूर करने के लिए ही मैया उन पर आरूढ़ा होकर सभी भक्तों को वर प्रदान करती रहती है कि मैं तामस गुण को दूर करूंगी। मेरे यानी मैया का वरद हस्त जो है यही स्थापित करता है कि अगर भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, ऐसा संकेत मैया प्रदान करती है। और संतान लक्ष्मी यानी हर प्राण कोटि को संतान पैदा करना ही होता है, यह अनिवार्य सृष्टि यज्ञ है। और ऐसे में मैया मदन का रूप धारण करके यानी वह पूरे प्राणी कोटि में वासना, काम आदि को पैदा करके सृष्टि यज्ञ में वह भाग लेती हैं, और सभी प्राण कोटि का सृष्टि यज्ञ में मतलब अपनी संतान को पैदा करने का होता है। देखिए, अमूल्य रत्नों से वज्र, वैडूर्य, गोमेधी, मणिक आदि से जड़ाऊ जितने आभूषण उनसे सुसज्जित होकर मतलब प्रतिरूप श्री महाविष्णु के विश्वक्सेन के रूप में हमें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। संतान जब पैदा होती है तो उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए विजय प्राप्त करनी ही होती है। तो विजय प्राप्त करने के लिए बड़े साहस के साथ धैर्य पूर्वक हर कष्ट का, हर कंटक का सामना करना होता है। तो ऐसे में मैया का आशीष मिलता है, आशीर्वचन मिलता है स्तुति करने पर, तो वह विजय लक्ष्मी बनकर हर प्राणी, हर भक्त में विजय यानी हर भक्त को विजयी बना देती है। ऐसी विजय प्राप्ति के लिए विद्या की आवश्यकता होती है। विद्या मतलब विवेक गुण है, तो यह सत्व गुण से जुड़ा हुआ होता है। विवेक वह होता है जो यानी अच्छाई और बुराई में अंतर मालूम रखता है, जानता है, और वह इसीलिए ऐसी मतलब जब जानकारी प्राप्त करता है और विवेकवान जब बनता है तो वह विजयी बनकर ही रहता है। ऐसे में सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहकर जब
हम महालक्ष्मी मैया का की प्रार्थना करेंगे तो सिद्धि हो जाती है, और उसके लिए जो आवश्यक बुद्धि है उसे प्रदान करके रहती है मैया। तो ऐसी विद्या लक्ष्मी का रूप हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, और अंतिम रूप जो उनका है वह धन लक्ष्मी का रूप है। धन यानी बिना धन के कोई काम संपन्न नहीं होता है। ऐसे में धन लक्ष्मी को प्रसन्न करके हर एक भक्त को धनार्जन के पीछे पड़ना होता है। वह आवश्यक कोई ऐसा द्रव्य है जिसके आधार पर जीवन चलाऊ मानना होता है। देखिए, अभी अभी मंदिर के विश्वक और चक्रतालवार दोनों मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ भी धूप दीप नैवेद्य और सारे उपचार प्राप्त करने के बाद विश्वक्सेन महाराज यानी जो सेनाधिपति है, यह सेनाधिपति उत्सव तकरीबन अंतिम चरण पर पहुंच गया है, और सेनाधिपति विश्वक्सेन याग मंडप में जाएंगे और अंकुरार्पण का कार्यक्रम वहां मंत्रोच्चार शास्त्रानुसार चलाया जाएगा। अभी देखिए, इतने ही सौभाग्यशाली हैं ये वाहन को धारण करने वाले धारक, बड़ी श्रद्धा प्रपत्ति के साथ विश्वक्सेन को ले आ रहे हैं मंदिर के अंदर। दीक्षाधारी अर्चक स्वामी यहाँ कर्पूर आरती देकर विश्वक्सेन को मंदिर के अंदर आह्वान करते हैं और याग मंडप में चले जाते हैं विश्वक्सेन जी। देखिए, सप्तकलश गोपुर तिरुचानूर का बड़े देदीप्यमान से दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं जां वंदे कुंद प्रियां। विश्वक्सेन को कुंभ आरती दी गई है। अभी वो याग मंडप में चलेंगे ताकि अंकुरारोपण सुप्रसन्ना पाहि अलमेल मंगा समुद्र
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।